हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Dundee March. Around the same time, the government made a new law. They imposed a tax on the use of salt, and this was opposed by the people as salt was the basic need of their people. But no attention was paid to the demand of the people. During to March-April 1930, Gandhi is a march from to the Sabarmati Ashram to the Dandi on the Gujarat coastal from the purpose of ridings of government salt. The violation of the salt law, this is the first challenge to be government. It was a peacefully march and Gandhi is a committed a technical breach of the salt law on 6 April 1930. Where is the peak up to the escorted a sea salt from the coast is a break is low. In this moment, a farmer, trader and women took part in a large number. The government arrested him in May 1930 and they put him to the Irwada jail to be Pune. This campaign is had to significance affect their British attitude to about Indian independence. Gandhi Irwin Pact. Gandhi Irwin Pact in 1931 was one of its example. Gandhiji also is one to be London in 1931 and participate in the second round table conference as the sole representatives of Congress, but no settlement could be arrived at. Third, Gandhi as arrest to remove him from the active leadership of their movement. And this civil disobedience is a continue. Special stress is laid on the boycott of foreign goods, particularly our clothes. The civil disobedience movement through a failure was a vital phase in the struggle for the freedom. It is promoted the unity among the Indians of different regions under their Congress banner. It provides opportunity to be recruited as younger people and educate them to position of the trust and responsibility in their organization as also in the provisional administrations, which was captured in 1937, a selection. It gave with the publicity to be a political idea and method throughout their country as generate to political awareness, even the remote villages. On the screen, your picture, there is the most important picture, Gandhi during to the Dundee March. This picture, on this time, there Gandhi is a march of, there is a salt law. There are during of Gandhi March. उसके पश्चात हमारे समक्ष है दंडी मार्च। देखिए, दंडी मार्च कहते हैं भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कहते हैं एक बहुत साधारण सी घटना थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं उसी समय सरकार ने एक नया कानून बनाया जिन्होंने नमक के उपयोग पर टैक्स लगा दिया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया क्योंकि नमक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक थी, लेकिन लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखिए, साधारण चीज़ जो नमक होती है उस पर टैक्स लगा देना कहाँ तक जो है न्याय उचित था। और आज के समय सोचिए, आज आप तिनके से लेकर तार तक भी खरीदने जाओ, इवन कि माचिस तक भी खरीदने जाओ, तो आपको जो है सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स आपको मौजूद रहती है। और नमक की तो दूर की बात है, 1 रुपया का माचिस मिलता है उसके भी टैक्स लगा हुआ होता है। इवन कि जो 50 पैसे के कोई सामान मिलता होगा उस पर भी सरकार का टैक्स होता है। आप सोचिए कि महात्मा गांधी ने डंडी मार्च इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है नमक पे टैक्स लगा दिया। और आज के समय में हर एक तिनके से तार तक जो है टैक्स लगी हुई है सरकार की हेल्प के लिए, फिर भी सरकार जो है अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है और देश में जो है बेरोजगारी, गरीबी और जो कहते हैं महंगाई पे कंट्रोल करने में आज भी असफल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनता है और ज़रूरी भी है। कहते हैं देखा जाए तो उस समय जिसके लोगों ने विरोध किया, लेकिन लोगों के मांग पर कोई ध्यान उस समय नहीं दिया गया। और मार्च अप्रैल जो 1930 के समय गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात का तट दंडी तक सरकार के नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा किया और एक
शांतिपूर्ण यात्रा थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को जो है कुशलतापूर्वक तोड़ने के लिए मन बना लिया और जो है 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने बिखरे पड़े समुद्री नमक को उठाकर इस कानून को तोड़ा और इस आंदोलन में किसान, व्यापारी, औरत ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने उन्हें मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया तथा जो है पूना के इरवदा जेल में रख दिया गया। इस यात्रा का पूरी बदलती दुनिया पर और अंग्रेजों को भारतीय प्रवृत्ति पर बहुत ही जो है महत्वपूर्ण असर हुआ और कहते हैं 1931 का गांधी एवं समझौता उसी का एक उदाहरण था। गांधी जी 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड भी गए। यहाँ पर ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये गांधी जी का डंडी यात्रा का जो है पहली तस्वीर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि गांधी जी जो है पैदल चल के यानी जनमानस से जो मुलाकात करते हुए वो अपने नमक कानून तोड़ने के लिए पहुँचे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन कुछ भी समझौता नहीं हुआ। गोलमेज समझौता देखा जाए तो कोई भी समझौता नहीं हुआ इंग्लैंड में जाने के बाद भी, और वो खाली हाथ इंग्लैंड से वापस लौट आए। यद्यपि गांधी जी की गिरफ्तारी से वे सक्रिय नेतृत्व से हट गए, लेकिन नागरिक सविनय चलता रहा। विदेशी सामान खासकर कपड़े के बहिष्कार पर जोर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को जो है कपड़े के अंतर्गत ही इसे उपनिवेश बनाया था और ये गांधी जी भली भांति जानते थे और गांधी जी ने विदेशी कपड़े का जो है बहिष्कार करने का मन बना लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, फिर भी यह स्वतंत्रता की लड़ाई का महत्वपूर्ण दौर था और यह कांग्रेस के झंडे के नीचे विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों के बीच एकता का प्रसार भी था। अब देखिए उस समय एकता पे महात्मा गांधी ने कितना जोर दिया था और इसने युवा की नियुक्तियों का अवसर भी प्रदान किया और उसे गठन के साथ साथ राज्य के शासन में जो 1937 के चुनाव में जीता गया था वो पद की गरिमा तथा उत्तरदायित्व की शिक्षा भी दी। इसने राजनीतिक विचारों और प्रक्रियाओं को पूरे देश में व्यापक प्रसिद्धि किया और चुनित गाँवों में भी राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर गांधी जी के आंदोलनों के बारे में हमने विस्तार पर चर्चा किया और जाना हर एक पहलू के विषय में, और ये भी जाना कि गांधी जी हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता पर विश्वास रखते थे और उनको पता था कि जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, और यही हुआ। भारत में हिंदू मुस्लिम एक हुए और अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर को देना चाहिए और यही कार्य करके आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए क्योंकि अगर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा जहाँ पर बहुत से वीडियो उपलब्ध है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए हर एक सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो उपलब्ध है। तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो और जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।